आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन जिसे अकेले घूमना बहुत पसंद है. लाइक आई डोंट नीड एनीवन्स कंपनी. आई लव to just hang out by myself. Fun fact, I've never had any job in my life. मैंने सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही किया है आज तक. मेरा कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट किया when I was 16. So just fresh out of school. तो जब आपने ये बात अपने फैमिली में रखी होगी, फैमिली के सामने रखी होगी, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या मतलब यूट्यूबर बनना है? So for them to even think कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करने वाली हूँ was like mind blowing to them. जब से मुझे याद है तब से मुझे मेकअप करना पसंद है और मेकअप से खेलना पसंद है. आई रिमेंबर व्हेन माई मासी, मैं बहुत छोटी थी तब मैं उनका मेकअप चुरा के उससे खेलती थी, मम्मी के मेकअप से. अगर आप मेकअप पगलू आप रिलेट करोगे. कैसे उस मेकअप को ऐसे किया जाए कि वो केकी ना लगे, खराब ना लगे और एकदम परफेक्ट फ्लॉलेस जैसे आपका लग रहा है? आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना केकी लगेगा. हाउ इज़ योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी? इट्स हेक्टिक बट इट्स एब्सोल्युटली एंजॉयबल. You mentioned about your boyfriend who is now your husband. So what is the story? We met when we were 12 years old. हम स्कूल में थे साथ में. We've been together ever since. We're high school sweethearts. Most embarrassing influencer moment. A beauty hack that actually works. Ooh. Hello, hi, my name is Mridul Sharma. I am a content creator, YouTuber, and also an entrepreneur, and you're watching me on FitTak. From making makeup tutorials to serving the most loved Get Ready With Me reels, this one influencer is winning hearts across the internet with her content. Known for her relatable personality, beauty tips and lifestyle content, she has built a community that loves and connects with everything that she shares. She is a Mumbai-based influencer who has made a remarkable mark in the digital space, securing the 14th spot on the Forbes Top 100 Digital Influencers list. With around 1 million subscribers on YouTube and a massive fan following across social media, she continues to inspire and entertain audiences every day. Yes, we are talking about your favorite, Mridul Sharma. So let's give her a warm welcome on our show, The Gupshup Gala, only on FitTak. Welcome, Mridul. Thank you so much for having me. Really looking forward to this. बहुत मजा आएगा. बहुत मजा आने वाला है. How's the जोश? Hi. एकदम हाई. तो मृदुल, फर्स्ट आई वांटेड टू स्टार्ट विद योर मेकअप जर्नी, बट जैसे ही मैंने आपको देखा, आई वांटेड टू फर्स्ट स्पीक अबाउट योर फिटनेस. Okay. व्हाट इज द सीक्रेट? सो ऑनेस्टली ऐसे कोई राज तो नहीं है बिकॉज मैं बहुत स्पोरेडिकली वर्कआउट करती हूँ. सो आई लाइक टू बेसिकली कीप इट स्पाइसी. सो मुझे अलग अलग चीज़ें करना, ट्राई करना बहुत पसंद है. सो जिम तो है ही एक, बट आई ऑल्सो रियली लाइक योगा. आई होप आई डू मोर योगा दिस ईयर. आई रिसेंटली स्टार्टेड प्लेइंग स्क्वॉश, सो दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग. सो बेसिकली अलग अलग एक्टिविटी में करते रहती हूँ. तो जिम का लाइक वर्कआउट का वर्कआउट भी हो जाता है और एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट. या सो व्हेन यू सेड कि कोई राज नहीं है द फैक्ट दैट शी कीप्स ऑन गेटिंग विद सो मेनी थिंग्स इज द सीक्रेट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. Sure. आई थिंक द फैक्ट दैट यू एंजॉय सो मेनी एक्टिविटीज. Also, I was checking your YouTube, Mridul. You have a community of 1 million subscriber. That's huge. Congratulations for that. Thank you so much. Thank you. So I checked one video where you said that you had that experience of solo trip. Correct. What is your point of view of that? Like, should women do more and more solo trip? How was your experience and everything? If you can just tell us. Absolutely. I think the video that you're referring to was my first time ever doing a solo Yeah. trip. Was it the Switzerland one? Yeah, So I had gone with a brand to Switzerland for Okay. work, and I decided to extend the trip and do the solo trip. And Okay. I thought कि स्विट्जरलैंड सबसे सेफ, ज्यूरिक सबसे सेफ सिटी है इन द वर्ल्ड. तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ. फॉर द मोस्ट पार्ट आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन जिसे अकेले घूमना बहुत पसंद है. लाइक आई डोंट नीड एनीवन्स कंपनी. आई लव टू जस्ट हैंग आउट बाय माई सेल्फ. But I feel like if you're someone who doesn't do that, I think you still should experience this at least once. And I feel like if you try it once, you're going to get addicted to the feeling of being able to do everything by yourself. So be smart about it, obviously, because you want to be safe. You want to have your Google Maps in place, all of your currency in place if you're traveling internationally. Locally कर रहे हो तो सब कुछ मतलब go safely and smartly. But I think everyone should do it. I am kind of trying to persuade my mom to do it also, because I feel like this is a life experience that everyone needs to have. Yeah, so you're more of an independent person who Correct. promotes independence and all of that. That's Correct. really great, and I hope your mom also goes for I it. hope so too. Yeah. So let's start with your content creation journey now. What was the motivation behind content creation, and how did it start, and everything about it? Just spill the tea. Sure.
सो मैंने मेरा कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट किया व्हेन आई वाज 16, सो जस्ट फ्रेश आउट ऑफ स्कूल. आई यूज्ड टू राइट ब्लॉग्स देन, एंड देन आई ग्रेजुएटेड टू मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ व्हेन आई वाज 18, 19, समथिंग ऑन दोज लाइन्स. तो ये मैं कर रही हूँ ऑलमोस्ट ओवर अ डेकेड से एट दिस पॉइंट. मैंने कैसे शुरू किया इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो व्हेन आई वाज 10, 11 years old, I get the age wrong, but around that age मैंने first time ever YouTube पे videos देखे. And जब मैंने YouTube पे video देखा, मैंने बोला मुझे यही करना है. So ever since then, when people would ask me, even when I was in school, what do you want to become, I would always say YouTuber. And लोगों को इतना confusion होता था कि होता क्या है YouTuber, because अभी recently तो भी थोड़ा सा information आ गया है. So that is how I basically started. Fun fact, I've never had any job in my life. मैंने सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही किया है आज तक, एंड आई लव दिस जॉब. इट्स द बेस्ट जॉब. This is so great. I mean, I had no idea that you started doing this blogging and all. I mean, you've been doing it for 16 years now. नहीं, 12 years. 12 years. अगर आप ब्लॉगिंग गिनोगे तो. अच्छा, okay, with the blogging and everything. Yes. And then you started doing YouTube जब लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं था. Correct. So that is great. तो आपने YouTube से स्टार्ट किया और आज जो इकोनॉमी है वो क्रिएटिव इकोनॉमी है. इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू शुड, आपको वो स्विच करना चाहिए यूट्यूब से इंस्टाग्राम, और कैसा आपका एक्सपीरियंस है यूट्यूब में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अब रील्स जो आप बना रहे हो उसमें क्या एक्सपीरियंस है? ओके, आई थिंक स्विच कभी भी नहीं था. मेरे पाँव, एक पाँव इंस्टाग्राम पे था, एक पाँव यूट्यूब पे हमेशा था. बिकॉज बट ऑल्सो वो टाइम पे यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस चलते थे, शॉर्ट्स नहीं थे, रील्स नहीं थे वो टाइम पे. तब इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ स्टैटिक फोटोज डाल सकते थे, तो मैं वो भी करती थी. बट वो टाइम पे कंटेंट वाज मोर सो यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस. और जब रील्स आ गए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आई थिंक कोविड के टाइम पे आए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तब मैंने बनाना शुरू कर दिया रील्स भी, क्योंकि सब बना रहे थे. एंड यू हैव टू अडेप्ट व्हेन यू आर अ क्रिएटर, यू हैव टू डू व्हाट इज वर्किंग. सो या, आई स्टार्टेड मेकिंग रील्स व्हेन रील्स वाज अ थिंग. बिफोर दैट इट वाजंट अ थिंग. हाँ, और आप अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाते हैं. तो व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड पिकिंग दिस वन जॉनर कि आपको मेकअप और गेट रेडी विद मी रील्स बनानी है? उसके पीछे की क्या स्टोरी है? सो मेकअप का यही है कि मुझे मेकअप, जब से मुझे याद है तब से मुझे मेकअप करना पसंद है और मेकअप से खेलना पसंद है. आई रिमेंबर व्हेन माय मासी, मैं बहुत छोटी थी तब मैं उनका मेकअप चुरा के उससे खेलती थी, मम्मी के मेकअप से. अगर आप मेकअप पगलू, आप रिलेट करोगे, ये सब ने किया है. तो मुझे पहले से ही मेकअप करना बहुत पसंद है. एंड आई हैव लर्नड हाउ टू डू मेकअप from YouTube. Like I used to watch all of these Western YouTubers. तो उनसे सीखे, फिर मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. ऑब्वियसली मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं खुद सीखी हूँ ओवर द इयर्स, आई लाइक टू शेयर देम ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. ओके, ऑल्सो मेरा ये क्वेश्चन जो सवाल है वहाँ पे मिस हो गया था जब आपने बोला कि आपको हमेशा से पता था कि आपको एक यूट्यूबर बनना है. करेक्ट. तो जब आपने ये बात अपने फैमिली में रखी होगी, फैमिली के सामने रखी होगी, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या मतलब यूट्यूबर बनना है? थे कंफ्यूज तो थे फॉर श्योर. सो मेरी मॉम फॉर कॉन्टेक्स्ट इज अ साइंटिस्ट एंड माई डैड इज अ केमिस्ट्री प्रोफेसर. सो फॉर देम टू इवन थिंक कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करने वाली हूँ वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग टू देम. सो मैंने कॉलेज में, सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किया. एंड मुझे पहले से ही श्योर था कि मुझे यूट्यूबर ही बनना है. आई वॉज हेल बेंट ऑन इट. एंड बाय द टाइम कॉलेज खत्म हुआ, आई वॉज डूइंग बेटर बट नॉट इनफ टू फॉर इट टू बी अ सस्टेनेबल जॉब एट दैट पॉइंट. तो मैंने मेरे पेरेंट्स से बोला कि मुझे 1 साल का गैप दे दो. एंड वो टाइम पे गैप्स वर नॉट रियली अ थिंग कि तुम गैप ले लो पढ़ाई के बीच में. बट कैसे कैसे वो लोग मान गए. वो 1 साल का गैप, और वो 1 साल का गैप कभी खत्म हुआ ही नहीं. मैं अभी तक यही कर रही हूँ. सो इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट. माई मॉम इनफैक्ट आज दिन तक शी टेल्स मी, आर यू श्योर यू डोंट वांट टू डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन? आई एम लाइक, या आई एम डन, आई एम श्योर. तो पेरेंट्स को तो आपने कन्विंस कर लिया, लेकिन किसी तरीके का रिलेटिव से भी कुछ वो प्रेशर था कि क्या कर रही है, या सवाल जवाब आए होंगे कि आपकी बेटी क्या कर रही है, इसको तो साइंटिस्ट बनना चाहिए, समथिंग लाइक दैट? लाइक डज इट एवर हैपन? नॉट रियली, बिकॉज आई फील लाइक मैं हमेशा से बहुत ही क्रिएटिव थी बचपन से. एंड माई फैमिली, इवन द एक्सटेंडेड फैमिली सॉ दैट. सो इट ऑलवेज फेल्ट लाइक अ परफेक्ट फिट. कभी भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुनना है रिलेटिव से. और मेरे मॉम डैड अगर सुनने भी आया होगा, मेरे तक नहीं पहुंचा है. तो सब कुछ सॉर्टेड था पहले से ही, रिलेटिव्स को पहले ही पता था यूट्यूबर ही बनेगी. ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स कम बैक टू मेकअप. तो आप मेकअप ट्यूटोरियल्स डालते हो, एंड आई एम श्योर इससे आपकी स्किन पे भी कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ता होगा. तो आपका स्किन केयर रूटीन वो कैसा है? आप कैसे अपनी स्किन का ध्यान रखते हो?
एब्सोल्युटली मेकअप लगाना बुरा नहीं है. आई फील लाइक बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि मेकअप से स्किन खराब हो जाती है. आई थिंक मेकअप रिमूवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू नो हाउ टू रिमूव योर मेकअप. सो डबल क्लेंजिंग इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट. इवन अगर मैंने लाइट मेकअप भी लगाया, सिर्फ कंसीलर भी लगाया, तो भी मैं डबल क्लेंस करूँगी. सो एंड अदर देन दैट माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इज़ वेरी सिंपल. फेस वॉश कर लो अच्छे कोई सिंपल क्लेंजर से. मॉइस्चराइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सनस्क्रीन. बस ये 3 स्टेप्स भी कर लिए एंड आई एम गुड टू गो. For my nighttime routine, as I said, double cleansing to remove my makeup. Sometimes I'll even do triple cleansing अगर मैंने बहुत heavy makeup लगाया है, because मेरे लिए मैंने आई डोंट थिंक 10 साल से मैं मेकअप लगा रही हूँ. मे बी मैंने 1 या 2 बार लाइफ में मेकअप निकाले बिना मैं सोई होंगी. सो इट्स अ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी टू रिमूव माई मेकअप. एंड देन आई जस्ट फॉलो इट अप विद अ नाइस सीरम, मॉइस्चराइजर, आई क्रीम, लिप बाम. सिंपल. एक्चुअली बहुत सारे स्टेप्स है, मैं सिंपल तो बोल रही हूँ. सिंपल वही मैंने कहा, सिंपल तो इतना साउंड कर नहीं रहा है, बट ठीक है, इसके लिए सिंपल लग रहा है. तो जब आप जिम जाते हो तो उसके लिए आपका कोई स्पेशल स्किन केयर रूटीन है? कुछ नहीं, सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ मैं और लिप बाम लगाती हूँ. दैट्स इट. अगर बहुत मन किया तो ब्लश लगा लूंगी मैं, इफ आई वांट टू लाइक फील क्यूट दैट डे, बट अदरवाइज दैट. मुझे लगा अभी आप कुछ बोलोगे, ओह या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, लेकिन आप नहीं, कुछ नहीं करती. नहीं, सनस्क्रीन तो लगाना ही पड़ता है, वो तो मस्ट है. ओके तो स्किन केयर जब आप करते हो तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है? जब आप मेकअप रिमूव करते हो तो सबसे ज्यादा क्या आपको कभी लगता नहीं कि नहीं यार ऐसे ही सो जाते हैं और कुछ ऐसा? वाटरप्रूफ मस्कारा. अगर वाटरप्रूफ मस्कारा लगाया है, मुझे बहुत ही इरिटेट होता है निकालना. तो आई ट्राई टू अवॉइड वाटरप्रूफ मस्कारा एज मच एज पॉसिबल, बट या दैट्स द ओनली अनोइंग पार्ट आई वुड से. जब आपने बोला कि मेकअप से स्किन खराब होती है, ये एक मिथ है, लेकिन बहुत से लोग आई थिंक ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं आफ्टर पुटिंग ऑन मेकअप. चाहे लिप्स में पिगमेंटेशन हो गया या बाकी चेहरे में एक्ने या ब्लैकआउट वो सब हो गया. तो क्या मतलब स्किन प्रेप कैसे करें अपने मेकअप के लिए, जिससे कि आपका जो मेकअप है लॉन्ग टर्म स्टे भी करे और साथ ही साथ आपको इस तरीके के इश्यूज ना हो? I think the biggest role is of the makeup products that you are using. Possibly आप जो pigmentation की बात कर रहे हो, it could be that a certain type of lipstick is not working for your lips. So I think switching immediately whenever you see that if you have a rash, for example, या आपको breakout हो रहा है, आपको purging stage भी होता है काफ़ी बार आप कोई product use करते हो तो I think keeping that in mind is important. Prep I think is very simple, but it's very very integral to doing your makeup. What I do is अगर मुझे मेरा makeup बहुत ही अच्छा सुंदर लगना है तो आई विल डू एन आइस डंक, जो सेलिब्रिटीज ने बहुत फेमस कर दिया है. तो आइस डंक वर्क्स लाइक अ चार्म. आपके पोर्स एकदम मिनिमाइज लगता है, आपकी स्किन ग्लो करती है. तो आई डू दैट बिग इवेंट्स के लिए. उसके अलावा सिंपल मॉइस्चराइज़र, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, आई क्रीम लगाओ मेकअप करने से पहले. बट यू नीड टू एक गैप ऐड करो. आप तुरंत सब लेयर्स मत ऐड करो. मॉइस्चराइज़र लगाया, गिव इट अ कपल ऑफ मिनट्स टू सिंक इन. सनस्क्रीन लगाओ, गिव इट अ कपल ऑफ मिनट्स टू सिंक इन. देन अप्लाई योर आई क्रीम, गिव इट अ फ्यू मिनट्स एंड देन डू योर मेकअप एंड इट विल लुक स्टनिंग. या बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ टाइम मृदुल, क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मैं भी मेकअप करती हूँ, मैं भी वही चीज कर रही हूँ जो सामने वाला बता रहा है, बट इट लुक्स वेरी वियर्ड एंड केकी. तो कैसे उस मेकअप को ऐसे किया जाए कि वो केकी ना लगे, खराब ना लगे और एकदम परफेक्ट फ्लॉलेस जैसे आपका लग रहा है, आपका वैसे भी लग सके? आपको भी बोलने वाली थी मैं, आपका भी बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक products absolutely very important and also remembering less is more. अब जितना ज़्यादा product use करोगे उतना केकी लगेगा. The tools that you use, that is also very important. I think आप अगर brush से लगा रहे हो foundation, that's great. If you want, अगर आपको लग रहा है कि बहुत केकी हो गया, use a wet sponge over it to absorb all the extra product and that won't make it look cakey. Okay, so now at this point, how is your content creation journey going on? Like what it is like to be an influencer in Bombay? I love it. As I said, I've been doing it for 10 years now, and recently I have started another page also with my husband, who used to be my boyfriend and was a big part of my YouTube journey even then. His name is Aditya. अगर आप हमें नहीं follow कर रहे हो मृदुल आदित्य पेज पे, please follow करना. So अब हमारे पास 2 channels हैं. So double the work basically, and we also run a business together. So it's like different hats that we're playing. So it's hectic, but it's absolutely enjoyable. Yes. And you mentioned about your boyfriend who is now your husband. So what is the story? Like we would love to know about your journey together. और कैसे पार्टनर ने आपको हेल्प किया है ग्रो करने में करियर वाइज? एब्सोल्युटली. मैं अभी जो स्टेज पे हूँ लाइफ में, आई वुड नॉट बी इवन हाफ इफ इट वॉज नॉट विद द सपोर्ट ऑफ आदित्य एंड इवन माई पेरेंट्स फॉर दैट मैटर. वी मेट व्हेन वी वर 12 years old.
हम स्कूल में थे साथ में. We started dating when we were in 10th standard and we've been together ever since. We're high school sweethearts. Yeah, so we've been together ever since. मैं जब मुझे blog start करना था मैंने आदित्य को बोला कि मुझे blog start करना है. उसने बोला चलो करते हैं. So he's taken all of my blog के pictures. He is actually even the person who cracks all of my brand deals. So he's also a lawyer, by the way. So he reads all of my contracts, gets all the loopholes out. He's played the biggest role in everything. Even for Simba Lifestyle, he's the backbone of Simba Lifestyle. He does all the logistics, all the back-end work, which I could never do. So yeah, I think it's a 50-50 in everything that we've been able to achieve. In the world right now where relationships are so hard, how did you get to decide that he is the one for you? कैसे आपको ऐसा लगा कि क्योंकि हाई स्कूल इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो राइट, तो कैसे डिसाइड किया दैट ही इज द वन फॉर यू? आई थिंक इट वॉज बहुत ही क्लीशे आंसर दूंगी इफ़ यू नो वाला, बट आई एम ऑल्सो अ वेरी डिसाइसिव पर्सन. लाइक अगर मैंने मन में सोच लिया कि मुझे ये करना है या मुझे whatever, लाइक जो भी डायरेक्शन हो. इनफैक्ट मैं ये भी आई डोंट नो मैंने ये बोला है कि नहीं बोला है पहले, बट मैंने जब आदित्य को फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा मैंने सोचा था कि ये मेरा हस्बैंड होगा. And I was like 10. It's a little weird. तो मुझे पता नहीं, बस पता था, and it just worked out. Obviously, there we had our ups and downs. Obviously, right? It's such a long relationship. I think we've completed 14 years of dating. Yeah, this year we completed 14 years of dating. So it's been a while. We've literally grown up together. We've been together in our teenage, in our 20s, and soon we'll be together in our 30s also. So we've done life together, and it's just an instinct that we've had. We both were so sure about each other. So yeah, it just 14 worked years out. of dating, or is it like, does it also include the marriage? 2 years of Okay. Marriage and 14 years total dating. Oh, wow. Okay. I'll just take a long deep breath. All right. आपने ये मेंशन किया इसके बारे में, स्क्रीन टाइम के बारे में. एज एन इन्फ्लुएंसर कितना मुश्किल है आपको खुद, मतलब कैसे स्क्रीन टाइम अवॉइड करना, कितना मुश्किल है एज एन इन्फ्लुएंसर? आई एम समवन जो इंस्टाग्राम, आई डोंट रियली यूज़ इंस्टाग्राम. मैं नहीं करती हूँ स्क्रॉल, मैं पोस्ट करके आई एम डन. लाइक आई डोंट इवन वॉच स्टोरीज, रील्स. कभी कभी ऑफकोर्स मुझे आता है मूड जब मुझे देखना होता है, यूजली ऑन संडेज व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स व्हेन आई विल डू इट. बट अदरवाइज मुझे इंस्टाग्राम में कंज्यूम नहीं करती हूँ कंटेंट ज़्यादा, बट यूट्यूब आई कंज्यूम अ लॉट. मेरा स्क्रीन टाइम बहुत हाई होता है यूट्यूब पे, बट मोर सो मैं देखती नहीं हूँ यूट्यूब. सो व्हेन आई एम डूइंग माई मेकअप इट्स प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. व्हेन आई एम डूइंग सर्टन टास्क्स लाइक आई एम पुटिंग टुगेदर आउटफिट्स, इट्स प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. सो आई एम नॉट एक्टिवली कंज्यूमिंग content, I'm passively consuming it. So it fills that void in me. Like I'm entertained, but I'm also not wasting time, quote unquote wasting time. Okay. So how do you take break from YouTube? I don't want to take break from YouTube. I love consuming content on YouTube. रात को भी मैं जब मेरा मेकअप रिमूव कर रही रहती हूँ तब मैं एक्टिवली देखती हूँ, बिकॉज इट्स माई फ्री टाइम, राइट? मुझे बहुत पसंद है यूट्यूब देखना, तो आई डोंट वांट टू अवॉइड इट. आई लव इट. इससे स्लीप क्वालिटी या स्लीप पे कुछ हैम्पर होता है आपका? नहीं, नॉट रियली. I sleep very well. I sleep like 10 hours every day. नहीं, स्लीप क्वालिटी पे कोई हैम्पर नहीं होता. ओके. एंड व्हेन यू सेड कि जब मैंने आदित्य को देखा मुझे समझ आ गया था कि ही इज द वन, राइट, मैं इससे शादी करूंगी, तो लाइक आर यू समबडी हु इज अ फर्म बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड ऑल? Absolutely. Yeah. I love the book The Secret. It's the most classic cult favorite, but I think if you've never read it, you absolutely must read. There's a book which is called Manifest also, which is so good. आपने पढ़ी है वो बुक बाय एनी चांस? आई हैव. बहुत अच्छी है वो बुक, आप पढ़ना. मैंने ये साल ही पढ़ी है वो बुक. आई थिंक वट एवर यू पुट आउट इन द यूनिवर्स, आई थिंक यू नीड टू हैव ऑडेसिटी. लाइक आप में वो जिगर होना चाहिए टू क्लेम थिंग्स. सो आई फील लाइक ड्रीम बिग एंड द यूनिवर्स विल डू हाफ द जॉब फॉर यू. ओ माय गॉड, कुछ ऐसा एग्जाम्पल besides आदित्य, कोई ऐसा एग्जाम्पल वेयर यू फेल्ट लाइक यस मैनिफेस्टेशन हैज रियली वर्कड फॉर मी? I think everything in my life, like everything I have manifested, I'm a huge believer in writing things down. It's a scientific fact also. कि आप लिखते हो तो वो ज़्यादा register होता है brain में. So I journal almost every single night. I love making lists and goals. Like मेरे phone में अभी भी एक 2026 का goal list है. And mostly सब कुछ हो जाता है, thankfully, thanks to the universe, the God, whatever you believe in. Yeah, I think writing things down and making goals is very important, because if you don't
Because if you don't make goals, how is it that step one is making goals, basically. Wow, so you are somebody who's like always very excited. To-do list Always. banana Yes, hai. See, yes. I can tell from here. You remind me of my friend who is like to-do list paglu, Absolutely. certified. I have lists of everything in my phone. हर चीज का लिस्ट है. इवन थिंग्स दैट आई लाइक टू ईट, डोंट लाइक टू ईट, मेरे पास सब चीज की लिस्ट है. पता नहीं, मुझे मजा आता है लिस्ट बनाने में. हाँ, जिस तरीके से आपने अपनी फिटनेस के बारे में बताया कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. सो इट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ हेल्प्स यू इन योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, लाइक हेल्प्स मी स्टे ऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज. Yeah, and mental health, sure. Huh. I like to be structured. Structure is very important in my life, especially with the job that I have, which doesn't have structure. Because brands आ जाते हैं, बोलते हैं कि 48 hours में हमें वीडियो दे दो, and it's very exciting for me. I enjoy doing this very spontaneous things, but I am someone who likes structure, likes routine. तो मेरे जॉब से तो मुझे नहीं मिल पाता, तो अदर थिंग्स जैसे सर्टन टाइम पे उठना, सर्टन चीज़ें करना, सुबह रात को मेरी एक बहुत स्पेसिफिक नाइट रूटीन है, तो दैट कीप्स मी काम, कीप्स मी सेन. Oh my God, मतलब आप बिल्कुल chaos से हटकर, I think you are somebody who is very organized and it kind of helps you. Yes, I have a brand that sells planners, so yeah, I am very Okay. organized and I love planning. Yeah, Simba के बारे में भी आपने बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, but I think eventually. Correct, correct. Yeah, Not तो- the right time. Maybe हम फिर से एक इंटरव्यू करेंगे, लॉन्च हो जाएगा उसके बाद. हाँ ठीक है, उसके बाद हम आपको फिर से इसमें बुलाएंगे. Absolutely. तो जब आपने बोला कि लिखना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, लाइक डू यू ऑल्सो टेल योर व्यूअर्स ऑल्सो टू लाइक डू ऑल सच थिंग, मतलब बिसाइड्स मेकअप तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन व्हेन यू मे बी कम्युनिकेट विद योर व्यूअर्स या ऑडियंसेस, तो आप उनको ये सारी चीज़ें भी बताते हैं कि ऐसे लिखना है, ये करना है. Absolutely. In fact, मुझे जब भी I meet people in malls or in public settings, so products के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगता है, but उससे ज़्यादा जब मुझे लोग बोलते हैं कि हम आपकी तरह जर्नल करना हमने शुरू कर दिया है, हमने गोल्स लिखना शुरू कर दिया, हमने विजन बोर्ड्स बनाना शुरू कर दिया, and it's made an impact in their life. They feel like they're more organized. A lot of viewers go to school, so they tell me how their school life has improved because of just more organization and more structure. I think it's the most fulfilling thing that I can hear. ओके, सो एट एनी पॉइंट डिड यू फील बर्नआउट कि ये मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ और मुझे हमेशा एक टू डू लिस्ट चाहिए होती है, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करना होता है, तो लाइक डू यू फील बर्नआउट? Absolutely, absolutely. It hasn't happened in a long time, thankfully. But there was definitely a phase where आप कोई भी चीज़ बहुत टाइम के लिए करते हो, तो फिर एक पॉइंट आ जाता है जब आपको लगता है मैं इससे ज़्यादा अब क्या करूँ, बिकॉज वही सेम टाइप का कंटेंट मैंने बहुत साल बनाया. सो आई थिंक दैट बर्नआउट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड analyze and observe what has been going on, take a step back and understand how can I make it better. So वो sense में yes, absolutely burnout हुआ है. So I feel like I want to give it my all for sure, but then every time I feel like कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे mental health पे affect हो रहा है, या तो मैं अपनी family को time नहीं दे पा रही हूँ, then I take a step back. So I won't say balance because मैं balance नहीं attain कर पाई हूँ. It's a work in progress always, but I feel like whenever my body and my mind allows me to give it my all, I will give it my all. या और आपने कभी जॉब भी नहीं किया है, Correct. तो आपको कभी ये सब मिस आउट थोड़ा सा होता है कि मैंने कभी ये नहीं किया, ये साइड एक्सप्लोर नहीं किया, तो लाइक डू यू एवर फील लाइक कि ये एक्सप्लोर जॉब रिलेटेड तो नहीं, मुझे कभी फोमो नहीं हुआ कि मैंने जॉब कभी नहीं किया है. आई वुड लव द फिट्स, लाइक आई वुड लव टू ड्रेस अप लाइक अ कॉर्पोरेट Yeah. गर्ली. आई मिस दैट, बट आई गेट टू डू दैट व्हेन आई गो फॉर मीटिंग्स, तो तब मैं कर लेती हूँ अपना मन पूरा. बट व्हाट आई डू मिस इज नॉट हैविंग दैट एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग, गोइंग समवेयर बाहर, भले ही अपने ही कंट्री में हो या बाहर जाके पढ़ाई करना, अकेले वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीना. आई मिस दैट, लाइक आई फील लाइक आई काइंड ऑफ missed out on it, but it's okay. Okay. So I saw your Get Ready With Me reel. So I just wanted to understand what's the meaning of fashion for you. Fashion क्या है and what was the inspiration behind those Get Ready With Me? Fashion is self-expression for me. I feel like कि श्योर सबका एक पर्सनल सेंस ऑफ फैशन होता है, बट फैशन लेट्स यू काइंड ऑफ एक्सप्रेस वॉट यू आर फीलिंग. सो राइट नाउ आई एम ड्रेस्ड वेरी लाइक फॉर्मल बिकॉज आई वॉज फीलिंग दैट, लाइक टाइम एंड प्लेस, मुझे यहाँ आना था तो मुझे एकदम यू नो मेरा बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना था. बट वेन आई एम फीलिंग एक्सपेरिमेंटल, सो आई कैन प्ले विथ लॉट्स ऑफ कलर्स एंड दैट्स फैशन टू मी. इट्स फन, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, देर आर नो रूल्स टू इट. या एंड व्हाट अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी एंड ऑल, क्योंकि बहुत से लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं कुछ कपड़े को लेके. व्हेन यू सेड कि सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, बट वो सेल्फ एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाता है बिकॉज दे डोंट फील कंफर्टेबल इन देयर बॉडी. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? I think there are so many great content creators who are doing a fab job at talking about body positivity, and I think it's great. I think wear whatever you want. Don't think about what people have to say. You have one life. There are so many cute outfits to wear. Who cares what anyone thinks? या तो गेट रेडी विद मी रील्स जो
आप बनाते हो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, आपको क्या मजा आता है और कैसे आप मतलब लोगों को इससे इंस्पायर कर पाते हो कि वो अच्छे तरीके से ड्रेसअप हो सके या क्या लाइक? मतलब मेरा कोई गोल नहीं है गेट हाँ. रेडी विद मी वीडियोस You enjoy बनाने doing it से. a lot. I enjoy doing Yeah. it. I actually started my career as a fashion blogger. और बीच में वो Okay. फैशन छूट गया था और अब वो वापस आ रहा है. सो वो गैप के बाद जब आप कुछ भी नई चीज तो नहीं बट आपका कोई पुराना पैशन आप फिर से उसका हाथ पकड़ हाँ. लेते हो तो इट्स एक्साइटिंग ऑल ओवर अगेन. सो आई एम इन दैट डेटिंग फेज विद फैशन, आई गेस यू कुड से. आई एम बैक. एक्चुअली मेरा ब्रेकअप हो गया था बीच में. आई एम बैक इन अ रिलेशनशिप विद फैशन, आई गेस. सो इट्स अ लॉट ऑफ फन. Okay, so last time you wore something that really excited you a lot, जिससे पहन के बहुत मजा आया हो, आपको बहुत अच्छा लगा? मैंने रिसेंटली एक पॉन्चो पहना. पॉन्चोज आर बैक इन ट्रेंड. दैट वाज वेरी आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन बट आई रियली एंजॉयड इट. ओके, तो ऐसे कोई फैशन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल आउट देयर कि क्या उनको पहनना चाहिए और बेसिक कैसे आप अपने आप को स्टाइल कर सकते हैं, बेसिक स्टाइलिंग टिप? मैं तो नहीं बोलूँगी कि आपको कैसे क्या पहनना चाहिए बिकॉज अगेन एज आई सेड फैशन हैज़ नो रूल्स बट आई थिंक हैविंग गुड बेसिक्स इज इम्पॉर्टेंट. लाइक हैविंग नाइस पेयर ऑफ जीन्स, हैविंग अ नाइस स्ट्रक्चर्ड पैंट, हैविंग नाइस कैमीज इन ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन एंड दे आर सॉर्टेड. देर आर सो मैनी लुक्स दैट यू कैन क्रिएट. इसको एक कैप्सूल वार्डरोब भी बोल सकते हो वेर यू हैव ऑल द बेसिक्स दैट यू नीड. यू हैव अ फ्यू सिल्वर पीसेज ऑफ ज्वेलरी, अ फ्यू गोल्डन pieces of jewelry, one statement piece, and I think you have it all. You have it all. And about gym clothes, if you want to say something. Gym clothes के बारे में I think comfort is everything above everything else. I am in the process of trying to find gym fits which are cotton because most gym fits are polyester and there's a lot being spoken about the fabric polyester. So I'm trying to sustainably switch to it. It's a little difficult, but if you are investing in gym clothes, अगर आप नए खरीद रहे हो, then consider buying cotton is what I would say. Okay, so you are a fashion blogger and all of that, but why are you giving me that lawyer vibe? Lawyer vibe because Yeah. my husband's a lawyer, so that Okay. rubs off. Yeah, actually, it was just going on in my mind right now that a very lawyer kind of personality you have, right? Are you saying that I'm? No, the way you are like, yeah, this and that. So it just. I'll take it as a compliment. Yeah, you must. And let's come back to marriage a little bit because of course you married your high school sweetheart and everything. तो आज के टाइम में मैरिज को लेके एक बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है सबके मन में. लाइक आई एम श्योर आपसे आपके फॉलोअर्स ने कभी इसके बारे में बात करी हुई है कमेंट में कहीं कभी कुछ, क्योंकि आप व्लॉग बनाते हैं दोनों मिलके. तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन मैरिज इन टुडेज वर्ल्ड? It's a very big life decision, so you make your own decision. I have not much to say. I've had a fabulous experience so far. Would recommend. 2 साल हुए हैं मुझे अभी शादी करके, so we're very early. It's too soon to tell, but we've been together for half of our lives at this point. I'm 28. I've been with Aditya since I was 14. Yeah. So half of my life I've been with him, and I hope to do the rest of my life with him. I think having your foundation very strong is very important. So have great communication skills, make sure कि आप में mutual respect हो, आपके goals align कर रहे हैं life Right. में, वो बहुत important है because Aditya and I are so aligned in terms of हमें क्या life में करना है साथ में. वो align होना बहुत difficult नहीं बोलूँगी, बहुत important है. So I think अगर foundation strong है तो फिर सब सही है. फिर सब हो जाएगा. फिर सब हो कोई जाएगा. दिक्कत नहीं है. कोई दिक्कत. ग्रेट. तो कोई ऐसे जेंजीज को लेके कोई अगर मैसेज इफ यू वांट टू पुट इट आउट देयर बिकॉज दे आर समबडी हु इज लाइक वेरी वेरी स्कैर्ड ऑफ Yeah. मैरिज एंड ऑल ऑफ दैट. सो I think give it time. I think that is important because it's great to explore options, no denying that. Huh. That's amazing. If you feel like things are absolutely toxic, obviously leave. But for certain छोटे issues, I feel like stick it out because time heals a lot of things. People can change. That's a huge thing because I'm not the same person whom I was when I started dating Aditya. Yeah. You have to meet in the middle. You change certain things about you, not your core values or your foundational things that you believe in, but छोटी चीजें. जैसे for example, मेरी communication skills were so bad when we started dating. Like मेरे मन में चीज होती थी and I would expect Aditya कि तुम मेरा mind read करके करो जो मुझे चाहिए. तो वो over time I've gotten better. Not still great, but I've gotten better. Yeah. And then Aditya का ये था कि he was not good with time management, which Okay. bothers me a lot. So he's gotten better. So you meet in the middle. Give it time, things get better. yeah, I think you really have to put some efforts and all of Absolutely. that. Absolutely. And be certain about certain things in life कि ये चीजें जो values हैं वो सब match Correct. जरूर दोनों करनी के चाहिए. morals बहुत important है match होना. हाँ, तो किसने किसको प्रपोज किया था?
किसने किसको प्रपोज किया था? एब्सोल्युटली आदित्य ने मुझे प्रपोज किया था. हिंट्स मैंने बहुत सारी छोड़ी थी. फर्स्ट मूव नहीं बोलूंगी एक्चुअली, फर्स्ट मूव भी मैंने नहीं किया था, बट मैंने बहुत सारे सटल हिंट्स छोड़े थे. बट उन्हें उसने ही प्रपोज किया. मैरिज के लिए भी या रिलेशनशिप? दोनों के लिए. गुड. बट मैंने भी किया था प्रपोज आदित्य को मैरिज के लिए. आफ्टर ही डिड इट. अच्छा, आफ्टर ही डिड इट देन अगेन you asked. Yes, why not? Equality. Oh my God, we are living in the world of equality. Yes. So I think relationships are also more about adding value in each other's Correct. life. Absolutely. Yeah. Yeah, मतलब उसके बिना तो कुछ relationships में कुछ भी नहीं है. Aditya is very well read. Okay. He reads a lot of books. There's so much that he has to offer in my life in terms of there are so many people that he even watches podcasts of. So I get to learn ऐसी चीजें जो मुझे पता भी नहीं होती. ऐसे कोई इंसान exist भी करता है मुझे पता नहीं होता. He tells me about different laws and different I don't even know, like I wouldn't be able to say it correctly, but he's very intellectual, so I really appreciate that about him. It adds a lot to my life. And then I tell him a lot about pop culture and drama that's happening in life, so I keep him entertained. So like, are you also somebody who loves watching movies and all? I do, but I wouldn't say I'm a movie buff. Okay. Like, I'm someone who will watch the same movie over and over again rather than exploring new movies. Okay. Yeah. And what are your views on red flag and green flag that is happening around? It's good to identify those. अब एक मतलब देखो, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग तो पहले से थे, जमानों से थे, बट उसको एक टर्म मिल गया है तो आई गेस आइडेंटिफाई करना इजी हो गया, आई गेस. अच्छा सही है, मतलब इफ टेकन लाइटली सही है. Okay. And now I have a very small round of rapid fire, which is Sure. not so rapid, so you can take your time. My first question is most embarrassing influencer moment. Ooh. So we don't have a lot of questions, but yeah, this is my second question. Ever posted a story meant for close friends publicly? Oh yeah, absolutely. Absolutely. Story बताइए टी. ऐसे कुछ इतना मैं कुछ स्कैंडलस नहीं पोस्ट करती हूँ, हाँ. बट इट्स जस्ट यूजुअली विथ लाइक माई फ्रेंड्स वी आर डूइंग लाइक क्रेजी थिंग्स. आई एम अ बिग क्लोज फ्रेंड स्टोरी पर्सन, सो वी आर डूइंग लाइक एम्बैरेसिंग थिंग्स, लाइक कोई बहुत ही अजीबोगरीब डांस स्टेप कर रहा है, वो सब मैंने पोस्ट कर दिया. Weirdest DM you have ever received? Unsolicited pictures that I would not want to see in my DM. Oh my God. Yeah. What is this obsession with, guys? मुझे ये क्या है, मतलब क्यों करना है? Like crazy. Okay, one trend you wish would disappear. Capris. Capris. Okay. The capri pants. Okay, you don't like it. I think ये फैशन में वापस से आ गया है. वापस आ रहा है, yes. बिली एलिश को मैंने पहनते हुए देखा, उसमें I was like, bro, I think I should also try it. But I'm not saying that it looks bad on everyone. Like हाँ. Hailey Bieber wears it. It looks so good on her. But I personally wouldn't do it. Yeah, I saw that song की Hero by Billie Eilish और उसने कैप्री पहना, मजा आ गया था मुझे देख के. Anyway, a beauty hack that actually works. Using two different mascaras, a different one for your top and a different one for your bottom. Because bottom की lashes थोड़ी पतली होती है. So using a lengthening one for your bottom and a volumizing one for your top. Damn. Okay. Have you ever hated a product but still used it? नो एब्सोल्युटली नॉट. मेरा सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया, मुझे कोई भी प्रोडक्ट अगर आता है तो पहले तो मैं बोलती हूँ अगर मैंने ट्राई नहीं किया मुझे पहले भिजवा दो. मैं इंटेंट नहीं दूंगी, पहले भेजो, बिकॉज अगर मैं ही नहीं यूज़ कर रही हूँ तो. और सबसे पहले मैंने वही बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कमाई है वो ट्रस्ट है. वही चले गया फिर कोई फायदा ही नहीं है किसी चीज़ का. वो वैल्यूज से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. बिल्कुल भी नहीं. करेक्ट. व्हाट इज मोर स्ट्रेसफुल, शूटिंग कंटेंट और एडिटिंग इट? So I don't edit anymore, but जब मैं करती थी editing for sure. Okay, so now you are not doing it. No, is it Aditya who is doing it? No, we have a full-time editor on board. Okay, and what's the hardest part about being on social media? The hardest part about being on social media, oh my God, I think it's just your mind. Being able to control your mind, because there are so many opinions, so many eyeballs on you. So agar you have peace within, I think everything's great. Shooting content is the easiest thing out of everything else that you have to do in content creation. Yeah, and you know, handling that once your one reel gets viral, तो उस तरीके से जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है इस टाइम में, तो कैसे आप उस टाइम में अपने आप को ग्राउंडेड रख पाते हो, हम्बल रख पाते हो, या किस तरीके से अपने आप को, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हो? ये आपने बहुत परफेक्ट बोला, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. सो आई एम फ्रॉम अ टाइम जहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता था. मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं हाँ, you are 28 मैं बोल रही हूँ जब मैंने 10 साल पहले किया था तब लॉन्ग फॉर्म ही था. तो तब अभी जो वायरलिटी का जमाना चल रहा है, तब ऐसे वायरल नहीं होती थी चीजें टू दिस डिग्री. सो व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द years is to not get attached to instant success.
or instant gratification, as you said. It's very important to be patient. Just keep Yeah. your head down, keep doing what you're doing. You will get your dues later, sooner or later. या और कभी किसी ने बहुत अच्छा कुछ कमेंट ऐसा कुछ आपको कहा हो, ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो जो आज भी आपके दिल के करीब हो? बहुत सारे ऐसे. मेरा एक्चुअली वन ऑफ, मैं जो आपको बोल रही थी, मेरा नाइट रूटीन होता है. हाँ. उसमें से एक रूटीन होता है कि मैं मेरे लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स पढ़ती हूँ. Okay. क्योंकि जो अटैचमेंट और जो कम्युनिटी बिल्ड होता है यूट्यूब पे इज जस्ट डिफरेंट ऑल टुगेदर. लाइक इंस्टाग्राम पे भी नो डाउट बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं, बट दे विल कमेंट अबाउट थिंग्स लाइक योर आउटफिट, योर लिप शेड, योर Yeah, hair. right. Whereas on Instagram it's so much more deep. They'll tell me about their life. Yeah. They'll tell me about the products that I've created at Simba Lifestyle, Right. how they've made a change in their life. So I think comments like those where I've been able to make even the slightest difference in their everyday life is the most gratifying. कि इंस्टाग्राम की अभी बात हो गई, यूट्यूब की अभी आपने जो बात करी, क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो और यूट्यूब पे लोग अपना एकदम पर्सनल होके पूरी बात करते हैं, तो ऐसा कोई कमेंट जो एकदम लॉन्ग कमेंट्स आते हैं कभी कभी किसी चीज़ को लेके, तो वो इफ यू वांट टू शेयर. आई थिंक बहुत ही मेरा फेवरेट एक कमेंट था जहाँ पे मुझे उन्होंने बताया था हाउ, ये बहुत साल पहले की बात है, कि हाउ दे यूज्ड आर सिम्बा लाइफस्टाइल्स प्लानर एंड दे वर एबल टू, दे वरंट डूइंग वेरी वेल पढ़ाई में बिफोर दैट, बट देन दे यूज्ड आर प्लानर. सो हमारे प्लान में बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं, बहुत सारा मैनिफेस्टेशन होता है, लिखना होता है, जर्नल होता है. सो दे यूज द हेल्प ऑफ दैट प्लानर एंड देयर ईयर वेंट वेरी वेल. सो दैट वाज अ पर्सनल विन फॉर मी, आई वुड से. Okay, that is great, Mridul. So I'm coming back to my first rapid fire question. Most embarrassing and emotional influencer moment. सो एम्बैरेसिंग, ओके. सो एक बार जब मैं नई नई थी, जब मैं इवेंट्स जाना मैंने शुरू किया था, तो तब मुझे पता नहीं था कि आउटफिट्स कैसे पहनने होते हैं, क्या डिग्री होता है. तो एक बार आई वॉज सुप्रीमली अंडर ड्रेस्ड to an event and it was a big event. Like I had gone wearing Goa ke skirt, Goa mein skirt pehante hain na वैसा, और tank top और sling bag, whereas it was like a gown type of an event. So that was extremely embarrassing. Other than that, एक बार ये थोड़ा recent ही हुआ था, wherein I was doing like I was hosting तो नहीं बोल सकते, but I was on the stage, let's just say, and I got the name of the product wrong. So that was, and there was an audience by the way. So that was very, very embarrassing. Like I kept beating myself up for the next few days, but ठीक है, होता है. Yeah, and most emotional if. Most emotional moment so far would be I think hitting 1 million. It was so personal because, as I keep saying, YouTube is home to me. Above every platform, I literally have a YouTube tattoo also. मेरे पास YouTube logo का tattoo है. ये मेरा 1 million हुआ था तब मैंने कराया था. So it was very special that मेरा 1 million रात को I think 3-4 बजे हुआ था. तो मेरे सारे friends who have been a part of this journey, they came रात को 12 बजे से. They stayed till the night. My parents were there. Aditya's parents were there. It was beautiful. It's a core memory that I'll never forget. Yeah, and I think when you mention your friends, तो मुझे इससे दूसरा सवाल आया. I think दोस्तों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पूरी journey में. Absolutely. Your girlies and girl power. Absolutely. I think when I started YouTube, everyone has been so supportive. Like मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि उनको स्कूल में बुली किया, कॉलेज में बुली किया गया था to create content, whereas मेरे साथ काफ़ी opposite experience रहा, where everyone has been so encouraging. I remember जब मैं फोटो शूट्स भी करने जाती थी, मेरे फ्रेंड्स आते थे मेरे साथ कि हम हेल्प कर देते फोटोज़ खींचने के लिए. So they have a huge part to play, and in fact जो मेरी YouTube की audience है, they love my friends. Like we do these certain sit down videos जहाँ पे मेरे सारे friends होते हैं. We're like a group of 9 people, now 10 people, where we all sit and we make videos, and it's just such a great time. जब ये आपने ये बोला, बुलिंग वाली बात बोली, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंटेंट क्रिएट आज भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको डर है, कॉन्फिडेंस भी उनका कहीं ना कहीं ब्रेक होता है क्योंकि कितने सारे लोग हैं और तुरंत चीज़ें वायरल हो जाती हैं, तुरंत नेगेटिविटी फैल जाती है, तुरंत आपके मीम्स बनने लगते हैं. करेक्ट. क्या ऐसे आप बात कुछ बोलना चाहते हो जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस मिले और वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ सकें? करेक्ट. आई थिंक आपने, इफ यू आर समवन हु वॉचेज अ लॉट ऑफ कंटेंट, वो एक ट्रेंड बीच में वायरल हुआ था, दिस इज सो क्रिंज, एंड देन when you're successful, everything that you used to do that was cringe is not cringe anymore. So I think that just explains it all. Everything feels cringe when you're trying to get at it, but once you're successful, it doesn't matter. And वही है, मतलब लोगों का काम है कहना, who cares, just do what you want to do, it doesn't matter. It happens a lot of time. पहले आप किसी को criticize करते हो, but when they get popular, then people नहीं, हम तो जानते हैं. Exactly. Wrong with people. Exactly. कि mental health भी इस चीज़ से बहुत खराब होती है. तो I think
You know, it is time for all of us to understand the fact that it's very important to be kind. Absolutely. I think people need to be kind on the internet, but I think that is something that you can't control. So you need to take a step back, be more grounded. And I think the most important thing अगर आपको content creator बनना है is to build thick skin. क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते सामने वाले क्या बोलने वाले हैं. यू नीड टू बी अनअफेक्टेड एंड सो श्योर ऑफ योर सेल्फ कि 10 लोग आपको कुछ भी बोल दे, इट्स नॉट गोना वेवर योर थॉट्स अबाउट योर सेल्फ. Yeah, that is amazing. Thank you so much. तो अभी हमने काफ़ी सारी बातें कर ली. Now last part, I would like to talk about diet. ओके. कि आप फिट बहुत रहते हो और आपका बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वैसा रहता है शेड्यूल आपका थोड़ा सा, आपको पता है कि आपको ये करना है, तो उस बीच में आप अपनी डाइट कैसे मैनेज करते हो, आपकी क्या गो टू डाइट है एंड एवरीथिंग? डाइट में सो स्पेशली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, ये मेरा एक काइंड ऑफ हेल्थ हैक है ऑलमोस्ट, वेरिन मैं मेरे ब्रेकफास्ट में ही आई विल ईट अ बिग बोल ऑफ सैलड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग स्पेसिफिकली. तो मेरा फाइबर इनटेक हो जाता है, मैं प्रोटीन भी सुबह ही खा लेती हूँ और फैट्स तो थ्रू आउट द डे हो ही जाता है ट्रैवल में. तो आई मेक श्योर टू हैव अ बिग बोल ऑफ सैलड एंड प्रोटीन इन द मॉर्निंग सो दैट मेरा एटलीस्ट एक आज के दिन का वो खत्म हो जाए. इन जनरल व्हेन आई एम नॉट ट्रैवलिंग राइट नाउ आई डोंट ईट कार्ब्स. I only eat carbs for breakfast. उसके अलावा throughout the day I don't eat carbs. बस उसके अलावा वही बेसिक है, शुगर मत खाओ, पानी पियो बहुत सारा, प्रोटीन खाओ. अभी प्रोटीन तो इज लाइक ऑल ओवर माई फीड. एंड बट सच बात है, पता है प्रोटीन खाता है ना तो कोई क्रेविंग्स होते ही नहीं है. एंड आई एम अ बिग बिंज ईटर, लाइक आई लव ईटिंग अचर कचर वट एवर एवरीथिंग, बट द डे मेरा प्रोटीन इनटेक प्रॉपर है, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता है. एंड हाउ डज योर डिनर प्लेट लुक लाइक? माई डिनर प्लेट इज यूजुअली अ बोल ऑफ सूप एंड सम सैलड. राज है. ओके, तो अभी आप दिल्ली आए हुए हो, तो आप क्या क्या ट्राई करने वाले हो यहाँ पे आके, क्योंकि आपको चटपटर भी पसंद है खाना, तो क्या आप खाने मैंने वाले ऑलरेडी खा लिया है, मैंने दाल मखनी खा ली है, मुझे दिल्ली की दाल मखनी बहुत पसंद है. अगर चांस मिलेगा तो मैं मोमो भी खा लूंगी. चांस मिलेगा, प्लीज खाइए. क्या कर रहे हैं जी आप? मुझे मोमो, क्योंकि मुझे मुंबई का खाना बहुत पसंद है. आई नो ये बहुत डिबेट होती है मुंबई बोलने वाली थी अभी. मुझे पर्सनली मुंबई का स्ट्रीट फूड बेटर लगता है, बिकॉज मुझे वो जो मुझे हमारी पानी पूरी ज्यादा पसंद है, हमारे क्या बोलते हैं, हमारा सेव पूरी ज्यादा पसंद है. बट मोमो इज समथिंग जो दिल्ली अनबीटेबल. हाँ, तो ये बोलिए कि दिल्ली में बेस्ट मोमो है. एब्सोल्युटली डन, दे दिया. ओके, सो यू आर गोइंग टू हैव मोमो आल्सो. आई होप सो. ओके, सो इन द एंड मृदुल, आई वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग. सोशल मीडिया देख के बहुत से लोग बहुत खुश हो जाते हैं ये सोच के कि ये इन्फ्लुएंसर यहाँ भी जा रहा है, ये भी कर रहा है, हर दिन स्टोरीज भरी होती हैं. तो हाउ योर सोशल मीडिया इज डिफरेंट फ्रॉम योर रियल लाइफ? Oh, absolutely. It is very different, right? Because you can't go off of the 30 seconds that you see of someone's life. Or for that matter, even my vlogs जो डालती हूँ 25 मिनट के, that's not my entire life. And I am someone who is known to only show the positive side, because मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई मेरे पेज पे आए तो उन्हें मैं अपने दुख भरी कहानियाँ बताऊँ, how sad I am. I want people to feel uplifted and possibly take something out of the video. So that is also one thing to keep in mind, that obviously everyone has their own struggles, and for that matter even the fact आपने जो बोला कि आप इतना घूमते हो, ट्रैवल करते हो, तो मुझे अब जाके ट्रैवल करने मिल रहा है 10 साल बाद, तो लोग वो पूरा देखना भूल जाते हैं and they just jump to the part, the rosy part, right? But I think there's a lot that goes behind it. There are so many hats that a content creator has to wear. सब जॉब में difficulties होती है, ये जॉब में भी होती है, but I just think the perks really outweigh everything. और बहुत से लोग जब देखते हैं तो बहुत से लोग खुशी से भी देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खुशी नहीं होती वो चीज देख के. बेसिकली आई एम सेइंग द कांसेप्ट ऑफ नजर. तो आप बिलीव करते हो? एब्सोल्युटली, मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ नजर में. ऑलराइट, थैंक यू सो मच मृदुल, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. और नजर से आप खुद को बचाइए, एंड आई रियली होप कि किसी को भी नजर ना लगे. एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस फन एंड इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन. फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी टू लाइफ बिहाइंड द कैमरा, it was wonderful getting a closer look at the journey, experiences and stories that shaped today's guest. We hope you enjoyed this candid chat as much as we did and got to know a different side of your favorite creator. And to all our viewers out there, thank you so much for tuning in to the Gupshup Gala. If you enjoyed this episode, don't forget to like, share and subscribe to Fit Tak for more exciting conversation with your favorite creators and personalities. Until next time, keep smiling, keep shining and keep watching Fit Tak. Bye bye. Wait, lifestyle के लिए 10 अलग pages क्यों follow करना? Health, fitness, yoga, mental wellness, सब कुछ एक ही जगह. Fit Tak. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade करो easy way. Watch only on Fit Tak YouTube.